Okay. Today morning, आज की सुबह what I'm really wanting to bring to you और आज की सुबह में जो आपके सामने लेके आना चाहता हूँ is something for the last 2 years. Especially during the lockdown, there was a series of psalms that I had, done, and it left a very lasting impression on me. और लॉकडाउन के समय पे मैंने भजन संहिता के ऊपर एक पूरा श्रृंखला शुरू किया था और उसकी वजह से मेरे दिल पे काफी असर पड़ा था और मैं आज आपसे वही बांटना चाहता हूँ। Psalms is probably a very short psalm, but it has a two-part message. और एक भजन जो बहुत ही छोटा भजन है लेकिन उसके पास एक दो भागा एक मैसेज है उसमें। So it's a long message with a short psalm. एक बहुत ही छोटा भजन है लेकिन उसके जो मैसेज है वो बहुत बड़ा है। And today I want to do the first part of that psalm. और आज मैं आपसे पहली चीज करना चाहता हूँ, पहला भाग करना चाहता हूँ। And next Sunday we'll do the second part. और अगले रविवार हम अगला भाग करेंगे। It is Psalm 127. और ये भजन संहिता 127 में से है। And I think I have to open my laptop. Okay. So some of you may have heard some of this at prayer meetings because I have shared this. Some of you have probably even attended the Psalms of Ascent. So some of it you have already grasped, but a lot of it is today morning would be slightly different as well. और इसमें से कुछ भाग जरूर से आपने सुना होगा पहले प्रार्थना सभाओं में, क्योंकि मैंने पहले इसे बांटा है और आज इसको एक नई तरीके से हम देखेंगे। But I want to present it today to all of you. लेकिन मैं आज आप सबको ये बांटना चाहता हूँ। Okay, this Psalm 127. ये जो भजन संहिता का 127वां अध्याय है। Change the slide. Can anybody tell me who wrote this Psalm? और इसके पहले कि हम ये स्लाइड बदलें, कोई बता सकता है कि ये भजन किसने लिखा था? तूने चेक किया? You peeped in the Bible. Most people don't even think Solomon wrote this psalm. और बहुत से लोगों को नहीं पता कि सुलेमान ने ये भजन लिखा है। Okay. All right. You have done it. I agree. So some of this is not you have done. Okay, और बहुत से लोगों ने कर रखा है। Solomon wrote this psalm and he's probably writing this psalm towards the end of his life. और सुलेमान ने ये भजन लिखा था और ये भजन उसने लिखा था जब वो मौत के करीब था। And I think these are the points I want to put before you as far as this psalm and Solomon is concerned. और मैं आपके सामने इन पॉइंट्स को रखना चाहता हूँ इस भजन में जो लिखा है और जो सुलेमान ने कहा है उसके बारे में। He built a fabulous temple to God. और उसने परमेश्वर के लिए एक बहुत ही महान विशाल मंदिर का निर्माण किया। He was the builder of much of Jerusalem. और बहुत सारा यरूशलेम उन्होंने निर्माण किया। And after all this activity, he realizes something at the end of his life, which he shares through this psalm. और इस भजन के द्वारा वो कुछ ऐसा बांटते हैं अपने जीवन के अंत में। Okay, when he built his temple, और जब उन्होंने मंदिर का निर्माण किया, he was so obsessed with the building. और वो उस मंदिर से इतना ज्यादा इतने भावुक हो गए। भावुक, वो उसका पूरा जहन उसमें चला गया। He couldn't think of anything else. He just built. और वो सिर्फ उसी के बारे में सोच रहे थे, मंदिर के बारे में। Okay, and he even went to the extent of taxing his people, which is why Jeroboam, son of Nebat, rebels against Solomon. He taxed his people very heavily, but he made sure the temple was built. A good thing, but an obsession that went wrong. और वो ऐसा हुआ कि जब मंदिर बन रहा था तो सुलेमान ने अपने लोगों के ऊपर एक कर भी जो है वो लागू कर दिया और एक भारी कर लागू कर दिया। और इसीलिए जो जेरोबाम जो नेबात का बेटा था, इसीलिए उससे वो लड़ाई कर बैठा, क्योंकि उसके सुलेमान के लिए उस समय मंदिर बनाना जो है वो एक बड़ी चीज हो गई थी। And in later days, it led to the splitting of the kingdom into two. और उससे आगे जाके ये हुआ कि जो इजराइल का किंगडम था, जो राज्य था, वो दो भागों में बट गया। Little history, but there's a lesson to be learned. You'll see why. और थोड़ी सी यहाँ पर हिस्ट्री जरूर है, लेकिन एक लेसन है सीखने के लिए। Now this psalm has two parts in it. The second part we'll be looking later on about children, but
After many years of building activity, after years of, he made many marriages. He got strategic marriages. He used to marry people more for political alliance, like signing a document. और सुलेमान की लाइफ अगर जिंदगी को हम देखते हैं तो उन्होंने ये मंदिर को तो बनाया ही, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अपने जीवन को व्यतीत किया, उन्होंने बहुत सारी शादियां की, और वो शादियां वो उन्होंने इसलिए करी ताकि उनको वहां का राज्य मिल जाए. Or political advantage. 700 wives and 300 concubines. 700 बीवियां थी और 300 रखेल. A lot of people say, how did he manage them? We can't manage one properly. और बहुत से वो लोग ऐसा सवाल पूछते हैं कि उसने इनको मैनेज कैसे किया, यहाँ तो एक नहीं संभाली जाती. But there's a very strange thing. Look at what I put in very small words. Only 3 of his children are recorded. और यहाँ पर देखें, अगर पतले शब्दों में लिखा है कि सिर्फ उसके जो 3 पुत्र थे वही बच्चे थे. हाँ, 3 उसका रिकॉर्ड है. उनका रिकॉर्ड किया गया, बाकी किसी भी बच्चे का रिकॉर्ड ही नहीं है. After having so many wives and concubines. और इतनी बीवियां होने के बावजूद. So in spite of amassing untold riches and wealth, और बेशुमार दौलत और दौलत बटोरने के बाद भी, and God had given him great wisdom, और परमेश्वर ने बहुत बड़ा विवेक दिया था उन्हें, which he used to do both good and bad. और जिसे उन्होंने इस्तेमाल किया अच्छा और बुरा दोनों करने के लिए. God gives us gifts. Very often we abuse them. बहुत सारी चीजें परमेश्वर हमें देते हैं, लेकिन हम उसका तिरस्कार करते हैं. But at the end of his life, he realizes actually, I'm saying 2 things. You could even say 1 thing was important. And he writes that down in Psalm 127. और ये सब करने के बाद, पूरे जीवन को जीने के बाद, वो भजन संहिता 127 में जो लिखते हैं वो उनकी लर्निंग है. And since one of my favorite passions is to take a Hebrew song and bring its translation to you, let's hear Psalm 127. और क्योंकि डोनाल्ड को अच्छा लगता है कि एक इब्रानी भाषा की And you also एक tolerate भजन me. को गीत में परिवर्तित करके हम उसे सुने, तो आज आइए हम सुनते हैं.
Can somebody just read it in English and somebody in Hindi? और कोई इसे हिंदी या इंग्लिश में पढ़ेंगे? It's a short psalm, 6 verses, I think. Watch in vain. In vain you rise early and stay up late, toiling for food to eat, for he grants sleep to those he loves. Children are a heritage from the Lord, offspring a reward from him. Like arrows in the hands of a warrior are children born in one's youth. Blessed is the man who quivers in full of them. They will not be put to shame when they contend with their opponents in court. यदि घर का यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, वह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसी के ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिससे अपने तक्ष को उनसे भर लिया हो। वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच न करेगा। आमीन। This morning we're going to look at two parts. You will notice he talks about life and how we do things in vain. और आप देखेंगे कि किस तरीके से सुलेमान इस भजन संहिता में दो भागों में बात करता है और किस तरीके से हम जिंदगी को व्यतीत करते हैं और कुछ बातें जो हम करते हैं वो बेकार ही हैं। व्यर्थ में करते हैं. And then he talks about children. और फिर वो बच्चों के बारे में बात करता We're है। going to look at today life. और हम आज जिंदगी के बारे में बात करेंगे। Next week we'll look at the children. So the first two verses और अगले are हफ्ते what we हम are जो going है to वो look at. बच्चों के बारे में बात करेंगे। I want you to understand this psalm is a poem. और आपको समझना है कि ये जो भजन है ये एक कविता की तरह है। Okay? And so when you use the word house, और जब आप एक घर का जो शब्द है वो इस्तेमाल करते हैं, it doesn't necessarily mean your physical house. It means your entire life and sphere of existence. और इसका मतलब जो है वो ये नहीं है कि जिस घर में आप रहते हैं ये उसी के बारे में बात कर रहा है, लेकिन आप जो कुछ भी करते हैं और उसके बारे में ये बहुत बात करता है। पूरा जिंदगी और तुम्हारा अस्तित्व का जो जगह है. Okay. Okay. It comprises of your physical house, your family, your friends, your community, your work, your aspirations for this life. और ये सारी चीजों में आपके दोस्तों के, आपके समुदाय, आपके काम और पूरे जीवन में जो भी आपकी आकांक्षाएं ये सब शामिल करता है। Okay. It covers everything you do to define your identity in this world. और आप अपने अस्तित्व को किस तरीके से बताना चाहते हैं ये सारी चीजों को कवर करता है। And the word society is another metaphor. और ये जो समुदाय है इसका एक और मतलब है, एक और रूपांतर है। And it is a city, is a society we seek to construct, the social life we seek to construct and build around our lives. और जो किस तरीके से हम अपने आसपास जो एक सामाजिक लोगों को लेके आते हैं और अपनी एक जिंदगी को समाज के साथ साथ बनाते हैं, ये उसके बारे में बात करता है। So yes, you can take it at face value, but I think this is what the psalm is speaking about, because along with this, Solomon wrote a great book, sometimes depressing, but great book called Ecclesiastes. और इस भजन को आप ऐसे के ऐसे ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद सुलेमान ने जो किताब लिखी थी, एक बहुत ही अच्छी किताब लिखी थी। कई बार उसमें पढ़ते हुए दुख लगता है, लेकिन वो बहुत ही शानदार किताब है, वो है एक्लेसियास्टिस। So we're going to look at this thing about the Lord building the house and the city. तो चलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर किस तरीके से इस And before I क्षेत्र go में, ahead, I want to show you that this is how this figure of speech is used. As an example in the next one, Jesus said, destroy this temple and in 3 days I will raise it up. और जब यीशु मसीह कहते हैं कि इस मंदिर का नाश कर दो और 3 दिन के अंदर मैं इसे वापस से खड़ा कर दूंगा, तो हमें समझना है कि ये घर या मंदिर के बारे में बात जो हो रही है ये एक दर्शन की तरह है। It's a figure of speech, and Jesus is speaking about his body, not a physical temple. और यहाँ पर यीशु मसीह अपने शरीर के बारे में बात कर रहे हैं, एक मंदिर के बारे में नहीं जो ईंट से बना है। So this is how the
Solomon is also using the word. और इसी तरीके से है सुलेमान जो है वो ये शब्द को इस्तेमाल Okay. कर रहा है। Psalm 2, I said, has two major things. And let me tell you, the one thing that it talks about is our heartbeats. You know, we all measure our life. और ये एक चीज आपको ध्यान रखने की है कि सुलेमान ने जिस तरह से भी लिखा है इस घर के बारे में, ये यहाँ पर हमारे दिल की धड़कन की बात कर रहा है। किसी तरीके से हमें समझना है कि हम अपने जीवन को किस तरीके से देखते हैं। No, we all measure our lives according to time. Arey, no time. I got no time. So much time. That is no time. No time. No time. और हम सब अपने जीवन को इस तरीके से नापते हैं कि अरे मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। But the moment you were born till the day you die, your time started ticking here in और- your heart. जब से आप पैदा हुए और जब तक आप अपनी कब्र में नहीं जाते, तब से आपका समय शुरू हो गया था। और वो जो चल रहा है वो आपके यहाँ पर दिल की धड़कनों में चल रहा है। That is your time. वो है आपका समय। And that time should define your entire life. और वो जो समय है वो आपके पूरे जीवन का प्रतिरूप देना चाहिए उसे। What you look at the watch and you're trying to put everything in is half the time your ambitions, your greed, your aspirations, and also your needs. And और- tough things, okay. और जो हम उसमें भरना चाहते हैं, कई बार हम देखते हैं कि अपने समय के अंदर जो हमारी जरूरतें हैं या जो हमारी आकांक्षाएं हैं, हर चीज को हम उसमें भर देते हैं। So we are going to look at the first one today. और Yeah. पहली चीज हम यहाँ देखेंगे, Unless the Lord builds the house, और जब तक प्रभु घर ना बनाए, unless the Lord builds the city, और जब तक प्रभु उस शहर का निर्माण ना करे, those who build it labor in vain. जो लोग वो बनाते हैं वो बेकार में काम करते हैं। The watchman stays awake in vain, और जो चौकीदार है वो रात को बेवजह जागा रहता है। and it is in vain you can get up early and go late to sleep and eat bread, worried about where the next food is coming from or the money is coming from. So he gives sleep to his beloved. और इस बात को चिंता करने वाले लोग बिल्कुल व्यर्थ करते हैं, क्योंकि वो जो बोलते हैं कि मेरी कल की रोटी कहाँ से आएगी, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को विश्राम करने को देता है। You know, we worry too much. Jesus said that actually to आप us. जानते हैं कि यीशु मसीह ने भी कहा कि हम लोग जो है वो बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, And yet we say, you are my provider. और फिर भी हम कहते हैं कि हाँ प्रभु आप मेरे देने वाले It's a हैं। joke, my way of just making fun. Okay, next one. This psalm we're going to look at in 3 points. और ये जो भजन है हम 3 भागों में इसे देखेंगे। We're going to see what it is. What are this psalm saying? This verse is saying 3 things. One is make God the priority for your life. और ये जो भजन है इसे हम पढ़ेंगे तो ये हमें समझ में आएगा कि परमेश्वर यहाँ पे हमसे 3 चीजें कहना चाह रहा है। पहली चीज ये है कि परमेश्वर को अपने जीवन की प्राथमिकता बनाएं। Second, दूसरा, recognize your vanities. दूसरी चीज की अपनी व्यर्थता को पहचाने। ये जो शब्द है ना vanities, मैं जरा हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि व्यर्थता कभी कभी पूरा मतलब नहीं देता है। इसको घमंड भी कहता है, अहंकार भी कहता है, अभिमान भी कहता है, ओके, महत्वाकांक्षाएं भी कहता है, ओके, मनोइच्छा को कहता है। तुम्हारा वो चीजें जो तुम्हें व्यस्त करता है, ऐसे चीजों में जय नहीं उलझने चाहिए थी, ओके, उसको व्यर्थता बोलते हैं। Have I cleared it in Hindi? It was just because it's an easy word for English, covers everything vanity, but it doesn't cover it in Hindi. Okay, and third one, और तीसरी चीज, find time to rest. आराम करने का समय निकालें। I would, yeah, okay, it's written Aram there, but I would like a bit of, I should have put the word Vishram, but anyway, विश्राम। let's move on. First one, make God the priority of your life. सबसे पहली भाग जो है कि हमें परमेश्वर को अपने जीवन की प्राथमिकता बनाना है। Okay, can we move? Okay, if we truly wish to experience a life that makes an eternal difference, the power within us is not enough. It is the power that God offers that matters. This is written by a very well-known writer called Dylan Burrows. और एक बहुत ही मशहूर राइटर हैं डिलन बरोज, वो कहते हैं कि अगर हम वास्तव में एक ऐसा जीवन का अनुभव करना चाहते हैं जो एक अनंतकालीन फर्क लाता है, तो हमारे भीतर की शक्ति पर्याप्त नहीं है। सिर्फ परमेश्वर वह सामर्थ है जो यह कर सकता है। And so you can't put God aside and try to live your life, which is all of us will say, yes, we know. तो इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर को एक साइड में रख के अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर सकते, और जब भी कोई किसी को ये बोलता है तो बोलते हैं हाँ मुझे पता है। Okay? But you may know
Okay, well, what do we do about it? Today, the world and even Christians follow a different ideology. पर हम इस बात को जानते हुए भी नहीं जानते हैं, When और I क्योंकि say- जो दुनिया है वो आज एक अलग विश्वास और अलग दिमाग से चलती है, सोच, अलग सोच से Okay. चलती है. विचारधारा का पालन अलग करता है. Okay, let's move on. Let me say what that soch is, where it starts. It started here 200 years back. और ये सोच क्या है? ये चार्ल्स डार्विन की सोच जो यहाँ पे देखेंगे हम, ये कुछ 300 साल पहले शुरू हुई थी. In the struggle for survival of the fittest, okay, in the struggle for survival, the fittest win out at the expense of their rivals because they succeed in adapting themselves best to their environment. This translated. ओके, चार्ल्स डार्विन ऐसा कहते हैं कि ये जो संघर्ष है हमें जीने और जीवित रहने की, इसमें जो सबसे शक्तिमान और ताकतवर होता है वो जीतता है. किस एक्सपेंस पे या कॉस्ट पे? वो अपने जो उसके पीछे चल रहे होते हैं या जो उसके दुश्मन होते हैं, वो उसके पीछे उनके स्पर्धा करने वाले स्पर्धा करने में ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं और अपने आप को बदलने में अपना जीवन व्यतीत करते हैं उस एनवायरमेंट, उस पर्यावरण में. Okay, now this can be taken to read differently by people who are. This is a scientist talking. और ये Okay, एक now- वैज्ञानिक है जो बात कर रहा है, और The इसे scientist thoughts when it becomes philosophy becomes the next one. और जब एक वैज्ञानिक की जो बातें हैं वो फिलॉसफी बन जाती हैं तो अलग तरीके से सोची जा सकती हैं. And listen, this thought glorifies the strong over the weak. और ये जो सोच है ये बताती है कि जो शक्तिमान है और जो ताकतवर हैं उनको ज्यादा वो ज्यादा मान मिलता है, महिमा मिलता है. हाँ. Okay, कमजोरों के सामने. And I like the song which says, "Let the weak say, I am strong." Okay, my voice forget. Okay, now, and while the law of competition or whatever we just read, okay, survival for the fittest may be sometimes hard for the individual, it is best for the race. For all human beings should also be competitive. They should all be someone who shows something. Okay? Because it ensures the survival of the fittest in every department. और जिस तरीके से दुनियावी सोच, ये जो सबसे शक्तिमान जो है वो वही सबसे आगे जाएगा, ये सोच को अगर हम आगे तोड़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो ऐसा जो स्पर्धा का लॉ है वो कई बार ये बोलता है कि अगर ये कुछ लोगों के लिए मुश्किल है लेकिन फिर भी ये हमारी पूरी जाति के लिए अच्छा है, क्योंकि ये पूरी जाति को और तेज और अच्छा बनाएगा. Okay, and so every human being is trying to be the best. Have और you ever इसी- said, "I'm the best"? और इसीलिए हर एक जन जो है वो इस बात की कोशिश में जुट जाता है कि मुझे सबसे अच्छा होना है. I remember once a small boy came up and he said, "I'm the best." I said, "Now don't be a pest." सो एक बात याद आई डॉन को कि एक बच्चा आया बोलता है कि मैं सबसे अच्छा हूँ, I'm तो very डॉन ने serious. मजाक में कहा कि अच्छा तुम अब कीड़े मत बनो, क्योंकि बेस्ट और पेस्ट जो है वो राइम करता है. Okay, sorry, that was an English joke. Next. Okay, everyone thinks he or she is the best. और सब Okay. लोग ये सोचते हैं कि मैं सबसे अच्छा हूँ. This is the thinking that goes right through everything we live. और ये सारी जीवन में जो हम बातें सुनते हैं करते हैं उसमें लागू होती है. We all want to be the strongest, the fittest, the handsomest, the prettiest. Everyone goes to gyms for double abs and six packs and I don't know what other packs, but anyway. And और so हम सब लोगों को सबसे सुंदर दिखना है, हमें सबसे फिट होना है, हमें जिम जाना है और अपनी बॉडी बनानी है और सिक्स पैक्स बनाने हैं धनेश की तरह. that was not in my. Okay, never mind. Y'all are getting, I want you to get this message. I don't want to make it sound heavy, but at the same time, I wanted to go through. Okay. Believing the world and its people revolve around them. Everybody feels, Dunya meri charo aur ghumti hai. You have films like say, Dunya meri jeb mein. और हर चीज, हाँ ओके ऑलरेडी. No, you can say it हाँ. in English. So everybody thinks that the world revolves around me and the world is in my pocket. And so we live a life which is I. How many times a day you say I? Sometimes in a day I've done it and I find, oh, help me. How many times you say I? So Me. हमारी जो दुनिया है वो मैं के आसपास चलती है, तो सोचिए कि सुबह से शाम तक कितनी बार हम मैं बोलते हैं. And then I say me. You know, everyone, yeah, you all only think about yourselves. What about me?
और कहते हैं इस तरह से कि तुम अब तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, मेरे बारे में कौन You सोचेगा। know, everyone gets blessed. Me, they don't remember. और सबको आशीष मिलती है, That मुझे comes नहीं from मिलती। this self thing and myself. It's all about me. You know, my children, my family, my school, my job, my career, my future. Is it your future or God's future? और हम Your जिस तरह future से with जिंदगी God, व्यतीत actually. करते हैं, सब कुछ हमारे बारे में होता है। मेरी नौकरी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा व्यवसाय, मेरी ये, मेरा वो, सब कुछ मैं। And it's always the winner takes it all. और यही है कि जो सबसे जो जीता है वो सब कुछ लेके जाता है। So all everything, even the computer games we play on our mobile, who wins, who takes it all? और हमारे जीवन में इस तरह से स्पर्धा की जो भाषा है वो डाल दी जाती है कि कंप्यूटर में जो गेम्स खेलते हैं उसमें भी ये कहते हैं कौन जीता, कौन जीता। And you must be passionate. You must dedicate yourself. You must be relentless in the pursuit of your goals. If you do, you will be successful. और इस तरीके से हमें सिखाया जाता है कि मेहनत करते रहो और जुटे रहो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि अगर तुम इस तरह से करोगे तो तुम यशस्वी होगे। Now, am I saying this is wrong? क्या मैं कह रहा हूं कि ये गलत है? Yes and no. हाँ और ना। There is a place to work hard, यहाँ एक जगह है जहां पर हमें बहुत मेहनत to be करनी है, passionate, कि हमें पैशनेट होना है, बहुत to dedicate yourself. एक बहुत जुनून जुनूनी रखना होना है। और एक जगह है जहां पर हमें मेहनत करके काम करना है, Dedicate yourself. हमें अपने आप को दे देना उसमें। Seek after the goals you know are the ones that you need. और उन गोल्स के लिए आप भागें और पीछे पड़ें जो आप चाहते हैं करना। It's not about being successful for you. It's being successful for the goals. And so the question is, what are your goals? तो ये जो यशस्वी होना है ये अपने लिए नहीं है, ये उन गोल्स के लिए है, तो लक्ष्यों के लिए है। तो आपको ये जानना है कि आपके लक्ष्य हैं क्या। Because if your goals are about you, क्योंकि अगर लक्ष्य सिर्फ आपके बारे में है then that's where it ends. तो वहीं पे वो खत्म हो जाएगा। But if your goals encompass all of us and all your family, all your community, the world, the world will be a different place. तो अगर हम इस तरीके से सोचें कि हमारा जो लक्ष्य है वो सिर्फ हमारे बारे में नहीं है पर पूरी दुनिया के बारे में है और हमारे कलीसिया के बारे में या आसपास जो हमारे लोग हैं, हमारा परिवार है, उनके बारे में, तो एक दुनिया अलग ही बनेगी। God gave us a heart to beat. परमेश्वर ने एक दिल ऐसा हमें दिया जो धड़कता That है, is the time that is ticking. और यही जो समय है, ये जो धक धक हो रही है, ये समय जा रहा है। And when we pull back from letting our hearts run after things that we want, और इसीलिए अगर हम अपने दिल को सिर्फ इस चीज के लिए धड़काते हैं और उन चीजों के लिए धड़काते हैं जो सिर्फ हमें चाहिए, to at least go after the things that God would want us to, तो हमें इस तरह से भी सोचना है कि परमेश्वर ने किन बातों के लिए इस दिल को दिया है धड़कने के लिए, it's that God's heart beats for. कि परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर किस बातों में दिल उनका Let धड़कता His है, heart and your heart beat as one. तो तभी आपकी दिल की धड़कन और परमेश्वर की दिल की Then धड़कन एक समान हो पाएगी। The Lord builds the house. परमेश्वर उस घर का निर्माण करता है He establishes the city. और वो ही उस शहर को खड़ा करते हैं। And He is the winner anyway. He doesn't need to take it all. He gives it all away. और वो उन्हें जीतने की जरूरत नहीं है, वो जीते हुए हैं और वो आपको हर चीज को दे देते हैं। And you become more than a winner, more than a conqueror. और आप जो है वो जयवंत से भी आगे बढ़ जाते हैं। This is our faith. This is ये है हमारा विश्वास। okay. The lives we build for ourselves may have boundaries to keep others out. Very often we live lives which are only about ourselves. We keep others out. Hey, don't rely on this one. Don't. We keep others out. We have boundaries. They are not among our types, you know. They are और कई बार हम अपने servant class. कई बार हम अपने जीवन में ऐसे दायरे बना लेते हैं जो सिर्फ हमारे बारे में होते हैं और उसमें सिर्फ हमारी बातें होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम इसको नीचे नजर से देखते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, ये हमारे दायरे में नहीं आ सकता। But these boundaries are only for others. और ये जो दायरे आपने बनाए ये आपके लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए है। You want to be my friend, then you should dress like this. You should speak like this. You should have this. You should have that. अगर तुम्हें मेरा दोस्त होना है तो तुम्हें इस तरीके से कपड़े पहनने, इस तरीके से बातचीत करनी है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। But what boundaries have you given yourself? लेकिन क्या You see, क्या सीमाएं आपने अपने आप को दी हैं? we build boundaries to keep others out, but we don't keep boundaries to protect us.
लेकिन We don't have boundaries for ourselves. The world is the limit. We can do what we like. हम ऐसी सीमाएं दूसरों के लिए तो बना देते हैं कि दूसरों को हमारे लिए क्या करना है, लेकिन ऐसी सीमाएं अपने लिए नहीं देखते जो हमें सुरक्षित रखेंगे। हमारा जो मन करता है हम कर लेते हैं और वो हमारे उसकी कोई सीमा नहीं है। For I, me and myself, the sky is the limit. और मैं और मेरे लिए जो है वो आसमान ही जो है वो सीमा है। But she doesn't deserve to be in our company. She doesn't know how to dress also. लेकिन ये हमारे साथ नहीं आ सकती, इसको तो कपड़े पहनने भी नहीं आते। She can't speak like us. She doesn't, you know. हाँ, और इस तरह से कहते हैं कि ये तो हमारे साथ नहीं आ सकती, ये हमारे जैसी नहीं है। Okay. And so I, me and myself lives life without restraint. और मैं और मेरा जो मेरे साथ हम लोग बिना किसी संकोच के जिंदगी को जीते हैं। And the Bible says if you live life without restraint, you live carelessly. और बाइबल बताती है कि अगर हम किसी भी Because- दायरे के साथ अपने जीवन को नहीं बताते हैं, your heart beats on things that will not matter. क्योंकि आप उन दिल की धड़कनों को उन चीजों के लिए दे रहे हैं जिन चीजों को का कोई मतलब नहीं है। Choosing what is the best for I, me and myself. तो इसलिए ये चूज करने के लिए कि मैं मेरे के लिए क्या अच्छा है उससे बजाय The best house, the best clothes, the best mobile, the best this, the best that, the best car, I don't know. I'm not saying these are wrong things. I'm saying this is what we end up being so obsessed with. और मैं ये नहीं कह रहा कि ये अच्छी चीज हमारे लिए जो बताई डोनाल्ड ने कि सबसे अच्छी कार या घर, ये चीज गलत है, लेकिन अगर हमारा दिमाग इन्हीं चीजों के आसपास ही घूमता रहेगा तो वो गलत है। For ourselves. सिर्फ हमारे लिए। Now I need a house so that I can look after my family well. और मुझे एक बहुत बढ़िया घर चाहिए ताकि मैं अपने परिवार का अच्छी तरह से देखभाल कर सकूं। मुझे घर की जरूरत इसलिए है क्योंकि मुझे मेरे परिवार की देखरेख करनी है और सही रीति से करनी है। परिवार को जितना चाहिए उतना हमारे पास मैं कोशिश काम करता हूं करने के लिए। उससे ज्यादा अगर मैं करता हूं तो मैं अपनी व्यर्थता, अपनी अहंकार से कुछ बताने के लिए और साबित करने के लिए कर रहा हूं। English. So I must earn to make sure that I am feeding my family and taking care of their needs and taking care of the needs well. If I'm doing anything above that, then I am doing anything for the vanities of my own mind. Simple Jaxi ने बताया कि she thanked God and that was nice. Where is she? Not here. She's gone down, is it? And she said she trusted God to provide a home for her family. And जिक्सी ने जिस तरह से बताया कि अपने परिवार के लिए घर चाहिए था उनको और उस तरह से परमेश्वर से प्रार्थना I करी। know them as a family for a few years. They've lived on rent. और मैं एक परिवार के तरीके से उनको जानता हूँ और कई सालों तक उन्होंने रेंट पे रहे हैं। What she did is God provided the home. और उनके God came in. किस तरह से भाषा उनकी थी कि परमेश्वर ने ये घर दिया मुझे। So whatever you do, even for yourself, make sure God is involved. और अगर आप अपने लिए भी कुछ करते हैं तो उसमें इस बात का ध्यान रखिए कि आप परमेश्वर को शामिल करें। Okay? And we must always think about what is best for all. और हमें ये भी सोचना है कि सबके लिए अच्छा क्या है। You know, we think, okay, let's do this is the best for us. You think it's the best, but that best causes great damage to others. और हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो सबसे अच्छा है, लेकिन वो हमारे लिए कई बार हानिकारक महसूस होता है। Sometimes a father goes out early in the morning and comes home so late the children never see him. और कई बार एक जो पिता होता है वो घर से इतनी जल्दी सुबह चले जाता है और रात को आता है, बच्चे उसे देख ही नहीं पाते। He's a hard-working, responsible, down-to-earth, good man. और वो एक मेहनत करने वाला अच्छा इंसान है, But परंतु has he built for all, क्या उसने सबके लिए ये बनाया or has he found the importance of what God has given him all? We will talk about children next week, but you understand what I'm saying? Where is your family in the scheme of things? Where is your church in the scheme of things? Where is your social commitments and your friendships? WhatsApp is not friendship. I think it breaks friendship sometimes. तो ऐसे इंसान को ऐसा समझना है कि वो क्या ये सिर्फ अपने लिए कर रहा है या सब के लिए कर रहा है। कहाँ पे उसके बच्चे हैं, बच्चों के बारे में अगले हफ्ते बात करेंगे। कहाँ पे उसका परिवार है, कहाँ पे उसके दोस्त हैं जो उन्होंने वादे किए हैं वो निभाते हैं कि नहीं है। ये सारी चीजों को देखना बहुत जरूरी है। Proverbs 25:28 says, a city that is broken down and without walls is a man. See here again, the word city is being used. As a man whose spirit is without any control, without any restraint. No walls for them. और नीति वचन 25 का 28 कहता है
कि एक ऐसा शहर जो टूटा हुआ है और जिसकी कोई दीवार नहीं है, वो एक उस इंसान की तरह है जो अपने जीवन को बिना किसी सीमा के जीता है। And so I'll leave you with question here this morning. और आज की सुबह में एक सवाल से Go आपको back and say, छोड़ूंगा, "Lord, where have what boundaries have I to keep which I'm not having for myself? और परमेश्वर से इस तरह से पूछें कि परमेश्वर कौन सी ऐसी सीमाएं हैं जो मुझे One- बनानी है या मैंने नहीं बनाई है। One of the fruits of the Spirit and one of the most difficult ones is self-control. और सबसे जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पवित्र आत्मा का फल है वो है सेल्फ कंट्रोल, Atma-Sanyam. आत्म संयम। Okay? Or Sayam, yes. Okay, now when you live like this without restraint, when the storms of life come, and they will come, और जब आप बिना किसी बाधा के जीते हैं और जब जीवन के जो तूफान है वो आपके सामने आते हैं, जो आएंगे, our worldview or our thinking, ideology is questioned. हमारी जो सोच है उस पे सवाल उठता है। You know, everything shakes. Everything is, अभी क्या करेगा? अभी what will I do? Where will I go? अभी we should do this. No. और जब ऐसे सवाल उठते हैं तो हम बिल्कुल बौखला जाते हैं। How he died? How this happened? Are he's my friend? How can I be so young? It doesn't matter. Life is like that. और कई बार हम कुछ जवान लोग जब चले जाते हैं तो हम बौखला जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे हो गया, लेकिन ऐसा होगा। जीवन ऐसा है. Because then you realize the race, we said, no, the race is not to the swift, nor the battle to the strong. और ये जैसे हम कहते हैं कि जो ये दौड़ है ये तेज तरार लोगों के लिए नहीं है, या फिर ये जो जंग है ये ताकतवर लोगों के लिए नहीं है। Neither is bread to the wise. Not all the wise people get food on their table. Some of them starve. और बहुत सारे जो विवेक वाले जो बुद्धिमान लोग हैं, जरूरी नहीं है कि उनको हर समय रोटी मिलती है उनके पास हर समय। So just because he doesn't have it doesn't mean God is not blessing him. It just means that life is like that. और कई बार हम देखते हैं किसी को अगर खाना नहीं मिल रहा है तो हो सकता है कि इसके पास परमेश्वर का आशीष नहीं है, पर ऐसा नहीं है, लेकिन जिंदगी ऐसी है। Sorry, yeah. Nor yet riches to the men of understanding. और इसका मतलब ये भी नहीं है कि जिनके पास बहुत सारी बुद्धि है उनके पास बहुत सारा धन होगा। In fact, उल्टा होता है, कभी कभी निर्बुद्धि लोगों को ज्यादा धन मिलता है। Yeah. Okay. Okay. Sometimes It's okay. people who have no brain get more money. Because time and chance, people say, where is chance? Here is your thing about chance. Life has unpredictable things. और कई बार लोग बोलते हैं कि मौका कहाँ है, मौका तो यहाँ पे देखिए मौका Happens to them all. सबके साथ ये होता है। So if something terrible is happening in your life, or you've got to go through, we are carrying crosses, you say, my cross, my cross. Nothing new. Different people have different kinds of crosses. और कई बार हम जब परेशानियों के द्वारा जा रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि मेरा क्रूस, ये सबके साथ होता है, हर एक के लिए क्रूस अलग है। Hard, difficult, but with God you will see through. मुश्किल है और बहुत मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। And so take heart. इसलिए दिल से देखिए, When you commit your life and center it on God, He is with you through every storm of life. और जब every आप difficulty, every hardship. जब आप अपने उस समय को, उस परिस्थिति को परमेश्वर में देते हैं तो परमेश्वर आपके साथ साथ चलते हैं हर समय। And you are better off than those who don't have God and go through hardships anyway. और इसीलिए आप इसलिए अच्छी जगह पे हैं क्योंकि परमेश्वर आपके साथ हैं, क्योंकि जिन लोगों के साथ परेशानियां हो रही हैं और परमेश्वर उनके साथ नहीं है तो वो तो वैसे ही निर्लज हैं। Okay. And life without God is simply, this is an English one, I don't know how Ajay is going to translate it. This is simply how the week will go. I know the red doesn't show, but it's a picture. So. और अगर ये तस्वीर को आप देखें तो जो जिंदगी है, जिनके लिए जिंदगी में कोई भी चीज कोई मायने नहीं रखती, तो उनके लिए सारी चीज समान दिखती है। I will read it out. Ajay will try and translate this because it's an English joke again. मैं कोशिश करूंगा। 7 days a week. Our week should be without God. Sin day, mourn day, tears day, waste day, thirst day. What happened to the days? Fight day, shattered day, shattered. And then 7 days becomes a weak person. So जब परमेश्वर हमारे साथ नहीं होते तो हमारे दिन और सप्ताह कुछ इस तरीके से दिखते हैं। So I made a very long point where I said, look, God is your center.
सो अगर हम इसको मैं कोशिश करूंगा डोनाल्ड के जोक को हिंदी में। ओके, सो हमारा जो हफ्ता है वो इस तरीके से दिखता है। इन्होंने लिखा सिन डे यानी कि पाप का दिन, मॉन्डे यानी कि मातम मनाने का दिन, टीयर्स डे मतलब रोने का दिन, वेस्ट डे मतलब बेकार दिन, थर्सडे मतलब प्यासा दिन, फाइट डे मतलब उस दिन बहुत लड़ाई होगी, और सैटरडे मतलब कुछ ना कुछ टूटेगा या खुद ही टूट जाएंगे। I know that was an English joke. हिंदी में भी कर सकते हैं, लेकिन I didn't have that much समय to think it through. Okay. बट एक जोक इसमें जो दिख रहा है कि हर दिन दिन की तरह दिखेगा, उसमें कुछ स्पेशल नहीं होगा। Okay, go on. Thank you for adding. And so you know this story. I'm not going to read it, but I just wanted you to remember the wise and foolish builders. और इस कहानी को आप Jesus' जानते हैं, parable. इस कहानी को आप जानते हैं, जो यीशु मसीह ने एक तोड़ा यहाँ पे दिया था, एक कहानी जो सुनाई थी कि एक जो इंसान अपने घर को पहाड़ी पे बनाता है और एक जो समुद्र की रेत पे बनाता है। What is your foundation? Is your foundation of your life God? और क्या नींव है आपकी, क्या आपके जीवन की नींव परमेश्वर है? Then your house will stand. But if you are building on your own priorities and your own importances of life, it will crumble, it will shatter. तो इस बात को समझ लें कि अगर आपकी नींव में परमेश्वर नहीं है तो आपका घर आपकी आशाओं और अभिलाषाओं पे बना हुआ है, तो वो एक ना एक दिन आके टूट के बिखर जाएगा। So I think that's important. We realize our foundation is God. Our entire life, whatever we do, is based on God. और इसलिए हमें समझ में आता है कि हमारे जो जीवन की नींव है वो परमेश्वर के ही बीच में बनी हुई है, उसके बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। Second, to recognize our vanities. Now, it's not my job to say you are like this and you are like this. You recognize it as we talk. और डोनाल्ड ये कहना चाह रहे हैं कि वो नहीं बोलेंगे कि आप ऐसे हो या आप ऐसे हो, हमें खुद को अपनी व्यर्थताओं को समझना है। व्यर्थता का पूरा लंबा मतलब हमने पहले समझाया The था। moment I start saying you are like this and you are like this, 3 fingers point back at me. और जब मैं ये बोलना Not शुरू my करूंगा job. कि आप ऐसे हो आप ऐसे हो, तो ये 3 उंगलियां जो है ये मेरी तरफ आ रही हैं, Okay. मुझे पॉइंट कर रही हैं। Let's move on. You see, there are many vanities we have, but when I looked at the works of my hands, Solomon is saying this, okay, in Ecclesiastes. Okay, then I looked on all the works that my hands had done. Things we do, we want to accomplish things. We want to do things with hands. It's good. और जब सुलेमान ये एक्लीसियास्टिस में ये 2:11 में लिखता है कि जब मैं अपने कामों को, अपने हाथ के कामों को देखता हूं जो मेरे हाथ ने किए हैं, And on the labor in which I had toiled, and I worked so hard, I put labor into it. I mean, when you make those dresses, how much labor goes in it? I mean, और it's a जब मैं fun मेहनत job. करता हूं, मशक्कत करता हूं, कितनी मेहनत मैं करता हूं। Okay, and indeed, if it didn't matter in the long run, it's all vanity. और अगर ये दूर दराज परमेश्वर के लिए भाग नहीं होता तो ये सब व्यर्थ है। Grasping for the wind. और इसका मतलब ये है कि हम हवा को मुट्ठी में पकड़ने की I कोशिश know कर I रहे हैं। use the dress as an example, but you earn a living from it, which is the right thing. Okay, but if you're just doing it to see how wonderful it is, and I'm the best, then you have a problem. You're doing it because I have to earn. That's it. That's the reality, not the vanity. The vanity is when it goes beyond that. और समझ हमें ये ऐसे देनी है कि जो अगर लूट्स का एग्जांपल लिया कि वो एक ड्रेस बनाती हैं तो उससे वो बना के उसे बेचती हैं, अपना घर चलाती हैं, लेकिन अगर वो उसे बना के ऐसा करें कि हाँ ये देखो मैं सबसे बढ़िया हूं, सबसे अच्छी मैंने ये बनाई है, तो वो व्यर्थता है। तो हमें समझना है कि क्या जरूरत है और क्या व्यर्थ है। Many designers do their work to earn a living, and that's good. और बहुत सारे डिजाइनर जो हैं वो काम करते हैं तो एक तनख्वाह उनको मिलती है या पैसे कमाते हैं। Many of my close friends are designers. I know people who are very good designers. और बहुत से डोनाल्ड के दोस्त हैं जो डिजाइनर हैं। But I know many of them also live in that. If something goes wrong and someone does better, they can't handle it. और ऐसे भी लोगों को इन्होंने देखा है कि अगर कोई डिजाइनर उनसे ज्यादा अच्छा करता है तो उनको बिल्कुल हजम ही नहीं होता। That is vanity. वो व्यर्थता है। Okay? And at the end of the day, there is no profit under the sun. You can't profit. You can profit, but that profit is for a purpose, and that's it. There's no profit under the sun. In the long term, you can't take everything with you. और इसलिए ये सुलेमान बताता है कि इस सूरज के नीचे इसका कोई फायदा ही नहीं है। जो फायदा है, Sorry, finish. जो फायदा है वो अगर हम उसको अभी इस्तेमाल कर रहे हैं उतना ही है, उसके आगे कुछ नहीं है। There is an importance to earn a profit, like you're earning in your business and you're learning that money because you got to run a home.
और अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें आप मुनाफा कमाते हैं, वो मुनाफे की जरूरत इसलिए है क्योंकि आपको अपना घर चलाना है, आपको तनख्वाहें देनी है। I'm not speaking of that kind of profit. मैं वो उस मुनाफे की बात नहीं कर रहा हूँ। But हमें बस कुछ तो खिलाने के लिए जमा करना है। और हम उस मुनाफे की बात कर रहे हैं कि हमें पुश्तों को खिलाना है। अबे हम कोई है, देख मेरे पैसे कितने हैं बैंक में, देख मेरी गाड़ियां कितनी है। और we become like that, we become so proud that look at my bank balance, look at how many cars do I own, look at Okay. my houses. I'm talking about that profit. There वो is nothing. डोनाल्ड उस मुनाफे की बात कर रहे हैं। Solomon probably was the Bible says he was the richest man that ever lived in his time. और सोलोमन जो है उस समय के, बाइबल बताती है कि सबसे ज्यादा धनवान इंसान थे, Couldn't take it with him. लेकिन अपने साथ लेके नहीं The जा पाए। gold shields he kept in the temple, Egypt took. और जो सोने की जो उन्होंने शील्ड वहां पे रखी थी मंदिर में, वो मिस्र देश से उठा के ले गया। Okay. I remember a story when I was in school, Muhammad of Ghazni, the और great Muhammad of Ghazni who invaded India. He died and he had all this gold around him because he couldn't bear the part he was dying and leaving it behind. So he gathered it on, my gold, my gold, my gold, and he died. और मोहम्मद गजनी की कहानी जब स्कूल में सुनी थी कि जब वो मरने वाले थे तो उन्होंने जितना भी सोना था अपने आसपास बिछा लिया और कहा कि मेरा सोना, और ये करते करते वो मर गए। Very often the house is on fire, we run to save the gold, we forget the children in the room. और कई बार हमारे घर में आग लग जाती है तो हम सोना बचाने भागते हैं और बच्चों को जो कमरे में वो भूल जाते हैं। So that's what I mean by vanity. What is your vanity? You need to find out. I'm not going तो to tell you. आपको जानना है कि Next. आपके जीवन में क्या व्यर्थ है और क्या लाभ है। Okay, what is vanity? It is a word used to describe something that is done with the aim of getting praise, fame, and approval. और वैनिटी का जो मतलब है वो ये है कि वो कोई भी चीज किसी वजह से की जाए जिसमें किसी को प्रशंसा मिले, प्रसिद्धि मिले या स्वीकृति प्राप्त हो, Rather than for serious or good reasons. और इस उद्देश्य के बिना कि कुछ अच्छी चीज उसमें से निकल के आए। So I'm not saying running a business and earning a profit is wrong. That is not being said here. What I'm saying is, don't do this only for praise, fame, approval, and my name. और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि व्यवसाय करना या कोई भी काम करना बुरा है, पर इसे इस काम के लिए ना करें कि मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि मुझे Because प्रसिद्धि मिले। From the rising of the sun to the place where it sets, God's name is to be praised, not क्योंकि yours. सूरज उगने से उसके डूबने तक परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, आपकी नहीं। Clear now what vanity is? Let's move on. Now, this is the verse I want to leave. Enjoy, it continues from there. Enjoy what you have. You know, we've got a lot of things we don't wear. Now, I don't like this dress. Now, I'm fed up of it. I want something new. That's vanity. और जो आपके पास है उसका आनंद उठाएं। ऐसा नहीं है कहते रहे कि मेरे पास ये जो कपड़े हैं बिल्कुल बेकार है, मुझे कुछ नया चाहिए। Am I saying don't buy new clothes? No, I'm not saying that. I'm मैं- saying don't grumble about what you have. और मैं ये नहीं कह रहा कि तुम नए कपड़े मत खरीदो, मैं ये कह रहा हूं कि जो तुम्हारे पास है उसका आनंद उठाओ। Enjoy them. Don't desire what they have. See how she wears the best clothes, the fashion. No. और हम किस तरह से कहते हैं उसको देखो वो कैसे ये पहनता है, कैसे वो पहनती है। Okay. You're just dreaming about nice things in life is meaningless. और जो आप अच्छी चीजों के बारे में सिर्फ स्वप्न देख रहे हैं Dream. उसका कोई मतलब नहीं है। Okay, dream. But then tell God about it and then carry on enjoying what you have. और आप अपने उस स्वप्न के बारे में परमेश्वर को बता सकते हैं, लेकिन जो आपके पास है उसका आनंद लेके But आगे बढ़ते after you रहें। dream it, you start making strategy, you start chasing after the wind. और जब एक बार आप अपने दिमाग में उसको सोच लेते हैं तो फिर आप उसके लिए हवा को रणनीति करने लगते हैं तो आप हवा के पीछे भाग रहे हो। हाँ, रणनीति मत करो, परमेश्वर के पास छोड़ो, आगे बढ़ो। लिव विद व्हाट जो तेरे पास है उसमें खुश रहो और बाकी आ जाएगा तो आएगा। ओके, नेक्स्ट। ओके, नाउ जीसस सेड दिस, ओके, वॉच आउट, यीशु ने ऐसा कहा कि नजर रखो बी ऑन योर गार्ड अगेंस्ट ऑल काइंड्स ऑफ ग्रीड। और हर एक ऐसी दुनियावी चीजों के रीड द वर्स, इट्स देयर। और उसने कहा कि चौकस रखो और हर प्रकार के लाभ से अपने आप को बचाए रखो। लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। बिकॉज अ मैन्स लाइफ डज नॉट कंसिस्ट इन द अबंडेंस ऑफ हिज रिचेस। Is Jesus saying don't get rich? No. Is he saying don't want more? No. He's saying don't get so obsessed with wanting more,
that you forget what you have and don't even look after it properly. There's a child at home waiting for you and you're sitting in office till 2 in the morning. For what? To work more harder overtime. 2 Timothy 4:10. 2 तिमुथियुस 4:10 कहता है, Demas was an apostolic man. He went on apostolic missions. He was a man of God. और दिमास जो था वो परमेश्वर का इंसान था, वो एक प्रेरित था. And very often, he says, but he loved the present world. At that time, he loved the world so much, he decided to go to Thessalonica to find his fortune. और वो दुनिया से इतना प्रेम करता था कि वो थेसलोनिका चला गया अपने संसार को ढूंढने. And Paul writes this, please, और पौलुस जो है वो लिखता है, where your treasure is, there your heart will also be. और जहां तुम्हारा धन होगा वहां तुम्हारा मन भी होगा. So don't say no time, can't make the no time is because you're seeking after the treasures you think are valuable. Now I'm not saying they are good or they are bad. You need to know. और ये मत कहिए कि समय नहीं है, क्योंकि आप उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो आपने चूज की हैं. आप समझते वो मूल्यवान है. अब मैं नहीं जानता कि वो मूल्यवान है या नहीं, आप जाने. लेकिन ask yourself. लेकिन हाँ, पूछना जरूरी है अपने आप से कि मैं किन चीजों के पीछे भाग रहा हूं, वो सही है या नहीं. Is this a vanity? क्या ये व्यर्थ है? If I have 5 shirts, can I give 2 to someone else? And the अगर- new ones? और अगर मेरे पास 5 कमीजें हैं तो मैं नई वाली 2 कमीजें किसी और को दे दूं. I love my watches so much, और मैं अपनी but I don't even wear 20 watches. Shall I give 1 or 2 to someone else? क्या मैं अपनी घड़ियों से बहुत प्रेम करता हूं, क्या मैं किसी को अपनी घड़ियां दे I'm सकता not हूं? saying you do this. I'm giving you this to challenge you to think. और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप ये करो, पर मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपको चुनौती दे रहा हूं कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं. May we not let the world and its ideologies define us. और इस दुनिया की जो सोच विचार है वो हमें हमें ना बताए कि हम कैसे जीना है. हमें वर्णित न करे, but let God define us through His word. लेकिन परमेश्वर हमें वर्णित करे अपने शब्द के द्वारा. So if you want to be transformed, if you feel there are vanities, as you see God's word, check those vanities, deal with them, and God will take you on. और अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि परमेश्वर की आवाज आपको सुनाई देती है कि ये चीज व्यर्थ है, तो उससे डील करिए और आगे बढ़िए. But having a vanity is not an issue. The whole world, including you, me, and everybody else, has vanities of different kinds. और जो ये व्यर्थता के बारे में बात हो रही है, इसमें कुछ चीजें ऐसी बुरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी दुनिया में सबके पास ये कुछ ना कुछ व्यर्थता के पीछे वो भाग रहे हैं. Important thing is when it falls flat on your face, you realize you've done it's wrong. You see God's word, seek change. और जो समझने की बात यह है कि जब आप परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं और उसमें से कोई चीज को देखते हैं कि हाँ ये व्यर्थ है और परमेश्वर आपके दिल से बात करता है, तब बदलाव देखें. Don't sit down and say nothing's wrong with me, everything is wrong with everybody else. और ऐसा बैठ के ना सोचे कि मेरे दिमाग में कोई गलती नहीं है, सब बढ़िया है, पर उसके दिमाग में गलती है. That is not loving yourself. That is actually committing suicide. और इसका मतलब ये है कि आप अपने से प्रेम नहीं करते, आप अपना एक्चुअली अगर तुम ऐसा बोलते हो उसका मतलब ये अपने आप से प्रेम नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है, तुम आत्महत्या कर रहे हो. Okay. Finally, these are questions I'm leaving with you on vanity. It is in vain you rise up early and go late to rest, eating the bread of anxious toil, for He gives sleep to His beloved. और भजन संहिता 127 में लिखा है कि जब हम मेहनत करते हैं तो परमेश्वर अपने लोगों को वो नींद प्रदान Are करता है. questions I cannot sit here and tell you, but you can with God. और So I've written them down, write them down, and spend your time with God. When you do, ask Him these तो questions. to मैं show you. आपको ये नहीं बता सकता हूं, लेकिन आप परमेश्वर के साथ अपना समय जब व्यतीत करेंगे तो आप परमेश्वर से पूछिए कि क्या मेरे लिए व्यर्थ है और क्या अच्छा है. What are we striving for and what are we anxious for? और क्या चीज के पीछे हम दौड़ रहे हैं और क्या चीज जो है हमें उत्तेजित कर रही है. Anxious. What is the word? Not uttejit. व्याकुल कर. व्याकुल कर रही है. Okay. What future are we investing in? Young people. जवान लोग इस बात को सोचें कि क्या हमारा आने वाला जो दिन है World will किस चीज के बारे में हम व्यवसाय में या किस में अपना समय और धन डाल रहे हैं. निवेश कर रहे हैं. निवेश किस कर रहे हैं. भविष्य में निवेश कर रहे हो. And what are we wasting our sleep over God's promises that are not yet fulfilled? और क्या हम अपनी नींद को
व्यर्थता में बिता रहे हैं, उन वादों के लिए, परमेश्वर के वादे जो पूरे नहीं अभी हुए। तक पूरे नहीं हुए, उस पर हम अपनी नींद क्यों गवाए? वो तो पूरा करेगा, he keeps his word. But we ignore the things God considers valuable and important and expects for us now. लेकिन हम उस बात को भूल जाते हैं जो परमेश्वर हमसे चाहता है अभी। Christians mostly we think, oh, God's promises, when will they happen? They will happen when they will happen. And if they don't happen, you can ask him when you meet him. और परमेश्वर के लोग जो हैं वो इस तरीके से व्याकुल होते रहते हैं कि परमेश्वर के वादे कब पूरे होंगे, कब पूरे होंगे, जब पूरे होने होंगे। लेकिन आज परमेश्वर जैसा आपको रहने के लिए कह रहा है वो रहिए। Get up a little early, go to bed a little early, eat your food on time, be nice to your wife, don't fight with her, be kind to your husband, don't show him a cross face, love your children, children listen to your parents. That is not important. That's what he's saying now. Promises he will keep, these we need to make right. तो परमेश्वर के वचन में जिस तरह से लिखा हुआ है कि हमें किस तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करना है, कि अपने घर में शांति रखनी है, अपने बीवी से अच्छे से बात करनी है, बच्चों को अपने माता पिता से अच्छी बात करनी है और उन्हें इज्जत देनी है, या फिर हमें मेहनत करके रोटी खानी है। इन सब चीजों को परमेश्वर कह रहा है आज देखो, जो मैंने वादे किए हैं वो तो मैं पूरे करूंगा ही। See, if we live in the race the world wants us to, it will be what we call the rat race, चूहे की दौड़. Okay, pressure, no sense of balance. We are running up and down, traveling here and there, under stress, too much work, chasing after things, overloaded, career, all these things. It's like one madhouse. और इस दुनिया की तरह अगर हम भागेंगे दौड़ेंगे तो उसे चूहे की दौड़ कहा जाता है, क्योंकि उस चूहे की दौड़ में सब लोग परेशान हैं, भाग रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, प्रेशर में हैं और सिर्फ भागे जा रहे हैं, कोई बैलेंस नहीं है। I think it's better to run the race with perseverance that marked out with us fixing our eyes on Jesus and running. इसलिए हमें इस तरीके की दौड़ दौड़नी है जैसे इब्रानियों 12 में लिखा है कि हमें अपनी आंखों को परमेश्वर पर टिका के दौड़ना है। Running for anything else is not really going to take us very far. क्योंकि किसी और चीज के पीछे भागने से हमें ज्यादा कुछ मिलने वाला है नहीं। William Carey had to say. और विलियम कैरी ऐसा कहते हैं, I am not afraid of failure. और मैं जो है वो डरता नहीं हूँ हारने से। I am afraid of succeeding at things that don't matter. और मुझे जो डर है कि मैं उन चीजों में सफल होने से डरता हूं जो मायने नहीं रखती हैं। Don't succeed in those things that don't matter. Don't worry about failure in those things if you succeeded in the things of God. अगर आप परमेश्वर की चीजों में यशस्वी हो गए तो बहुत अच्छी बात है। And this is Isaac of Nineveh, one of the early church fathers. He said, do not waste this life in vain pursuits. और आइजैक ऑफ निनवे कहता है कि जीवन को व्यर्थ के कामों में नष्ट ना करो। It is time you transition. और ये समय आ गया है कि आप बदलाव की तरफ बढ़ें। Okay, from living what you see as vanity to something that God, you see in God as value. What is value? और उस चीजों के पीछे जब आप जी रहे हैं जो जिसे व्यर्थता कहते हैं, वहां से बदल कर अपने राह को आप ऐसी चीजों की पीछे चले जो परमेश्वर के लिए मूल्यवान है। Is my wife and my children more valuable than my job? क्या How much मेरे of my बच्चे time और then I मेरी must give them? क्या मेरे बच्चे और मेरी बीवी ज्यादा मेरे लिए मूल्यवान हैं मेरी नौकरी से? Or am I going to chase after vanity? और क्या मैं सिर्फ अपने इन खोखली चीजों के पीछे ही भागूंगा? So that's the second point, and I think I'm almost running out of time. I'll leave this verse with you. और Okay. मैं आखिरी ये वचन आप पे छोड़ के जाऊंगा क्योंकि हम See समय खत्म हो How चुका you है। walk circumspectly, not as fools, as wise, redeeming the time for the days are evil. Listen, today days are evil. Today there's a lot of pressure on all of us. इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हैं। निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को बहुमूल समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हम सब जानते हैं कि दिन बुरे हैं। So prioritize the events in your life. और Okay. इसलिए हमारे जीवन में जो भी Let's कुछ हो रहा है move on, उसको हम भाग से देखें कि क्या पहले क्या बाद में। Third one, find a time to rest. और तीसरी चीज, आराम करने का समय निकालें। You know, he gives sleep to those he loves. I love that verse. और बहुत अच्छा वचन है जहाँ पे बोलता है कि वो जिनको चाहता है उनको नींद प्रदान करता है। Okay. In vain we are getting up, we are writing, we are doing this, we are doing that. We are not getting sleep. और Some people want to take sleeping tablets. और बहुत से लोगों को नींद की गोली लेनी पड़ती है क्योंकि वो इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, रात को लेट सो रहे हैं। There we are. ये देखो, You remember, this is how our life is. And what did somebody write? I was when I was a small boy, I remember reading in school. I put it here. I'm not going to read it. It says, what is this life full of care? We have no time to stand or stare.
No time to stand beneath the boughs and stare as long as sheep and cows. No time to, just draw back. Think और about अंग्रेजी में things. कविता जैसे लिखी है, ये इस तरफीर को बताती है कि हमारे पास किस चीज के लिए समय ही नहीं है। मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं वो भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास समय ही नहीं है। Don't let the watch determine. Let God determine things. और जो Next है one. घड़ी आपको ना बताए कि आपके पास कितना समय है, पर परमेश्वर आपको बताए कि आपके पास कितना समय है। Okay, move on. This thing, we can live like this. And we often, when God is first, I go to church on Sundays. My wife is next, so I say, hello, darling, to her in the morning. But actually, God wants us to live in the wheel of life. Which Or- turns round. He is the center. And everything else, our wives, our children, our parents, don't give priority beyond where priority is needed. And your life circle will move peacefully. और जो इस तरफ की जो तस्वीर है, उस तरह ना जिए कि हमारे हाथ में बैग बस्ता है और हम भागते जा रहे हैं, पर इस तरीके से जिए क्योंकि ये भी एक जीवन का एक चित्र है जहां पर परमेश्वर बीच में मध्यस्थ He's में the है। hub. वो बीच में मध्यस्थ में है और उसके आसपास आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके दोस्त और आपकी बाकी सारे दोस्त जो हैं, आपका बिजनेस, आपका कलीसिया और आपका जो रेस्ट करने का समय है, वो सारी चीजें एक चक्कर की तरह चलें, बैलेंस तरीके से And चलें life will be good. और जो जीवन है वो अच्छा हो जाएगा। No worry. Should I go? My wife comes first. No. They all are second, but God is first. और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, As he- कुछ लोग कहते हैं नहीं, मेरी बीवी जो है वो पहले स्थान पे आते हैं। नहीं, as he is पहले there स्थान पे परमेश्वर in the आता है। heart of everything. Because of his heart, your wife is important. Your children are important. Yes, your job is important. Yes, this is important, but it's because of the hub, because of the heart that beats in you for God. और जब हम अपने जीवन को इस तरीके से गोल घुमाते हैं जहां पे परमेश्वर मध्यस्थ में आ जाता है, तब हम देख पाते हैं कि हाँ, मेरी बीवी इंपॉर्टेंट है, मेरा बच्चे इंपॉर्टेंट है, मेरा काम इंपॉर्टेंट है, सब चीज बैलेंस तरीके से हम देख पाते हैं। And I'm not going to take all these verses, but it says, don't be anxious. We've spoken about it. Okay, come and find rest in God. When you find life is overpowering you, draw back. और जब आपको लगे कि आपका जीवन जो है आपके ऊपर हावी हो रहा है, पीछे हट के देखें, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि किसी भी चीज के लिए It's the व्याकुल time ना हो। to relax. I'm very troubled about something. Don't worry, I'm going to sleep. Morning, God, tell me what to do. और Because अगर you आप will be बहुत चिंतित हैं किसी चीज के लिए, तो इस तरीके से करिए, सो जाइए और कहिए, I'm not परमेश्वर going मैं to सोने go जा to रहा हूं, आप इस पे देखिए, कल सुबह देखेंगे। Look, God, I don't know. The whole thing is in a mess. I can scream or I'll sleep because you say you're in control. Good night, God. Stay in control. Thank you so much for loving me. और आप इस तरीके से जी सकते हैं कि आपके सामने कोई परेशानी खड़ी है, या तो आप उसमें रेस्ट कर सकते हैं या आराम कर सकते हैं, या फिर व्याकुल हो सकते हैं। तो आप इस तरीके से रहिए कि परमेश्वर मैं सोने जा रहा हूं, आपने बोला कि आप इंचार्ज हैं, आप कंट्रोल में हैं, तो आप देख लेना, मैं सोने जा रहा हूं, गुड नाइट। मुझसे आप प्रेम करते हो, धन्यवाद. It's important to say he loves हाँ. you. He's not doing this because he's okay. Rest is a weapon given to us by God. और क्या आप जानते हैं कि आराम जो है एक शस्त्र है परमेश्वर ने जो हमें दिया है। He wants you to, the devil wants you to be stressed and occupied. क्योंकि जो शैतान है वो चाहता है कि आप हमेशा स्ट्रेस रहें और हमेशा बिजी रहें। If you don't like only this much job, you take extra, take more. So take, do, run, round. That's your life. क्योंकि शैतान चाहता है कि वो आपको हमेशा बिजी रखे और बोलता है कि अच्छा थोड़ा से काम नहीं हो रहा, ये ले और ले और ले Remember, और ले। under stress, more people sin than when they go to sleep. और क्या आप जानते हैं कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आप पाप करने ज्यादा पाप कर सकते हैं या उसके बजाय कि अगर आप सो रहे हैं। Okay, so cast your burdens on the Lord. Remember, in this world of rat race, make space to live a happy life. And don't be anxious, but take whatever's worrying you and is anxious with prayer, petition. God, prayer is never is not like, no, I'm resting, so no prayer. Because in my sleep also you can pray. और किसी भी चीज को बोझ की तरह ना लें, हर चीज को परमेश्वर के सामने प्रार्थना में ले जाएं Present them to और God परमेश्वर से मांगे and say, good night. Thank you, Lord. You are in control. You are going to see to this. I'm और just going to see what you प्रार्थना do करें now. उस चीज के लिए और फिर सो जाएं और कहें परमेश्वर I'll see आप what you do. Risk low, Baba, for God. Why are you taking risk in the world? Next. Okay. Don't worry about tomorrow, Jesus said. Tomorrow will take care of itself. Each day has enough और troubles कल of की its own. चिंता ना करो, यीशु ने कहा, क्योंकि कल अपनी चिंताएं खुद लेके आएगा। Okay. And anyway, let's move on. I don't want to take all that. Okay. Here are things you can know if you're very happy. It's all about you, Jesus. I wish when we sing this song, we really mean it. 10 signs you're doing very well in life. You want to read it? Okay. I'll read it in English. Ajay, read it in Hindi. Come. You have a roof over your head. और 10 चीजें हैं जो You're बताती doing हैं very well in life.
Read in Hindi. You read in English, then I'll read. You have a roof over your head? They said yes. अगर आपके सर पे छत है तो You are आप खुश doing हैं, very well in life. तो आप बहुत खुश हैं. You ate today? क्या आपने खाना खाया? You are doing very well in life. तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं. Your heart condition is good. You have a good heart. It's beating. आपका दिल अच्छा है You are doing very well in life. तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं. You wish good for others? आप दूसरों का भला Really? चाहते हैं Very well in life. तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं. You have clean water to drink? आपके पास साफ पानी है पीने के लिए You are doing very तो आप well बहुत in अच्छा कर life. रहे हैं. You are striving to be better in your life? आप Then you are बेहतर doing very well in your life. आप बेहतर बनने का प्रयास कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं. Someone cares for you? कोई आपकी परवाह करता है Very well in your life. तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं. You have clean clothes to wear? क्या आपके पास साफ कपड़े हैं पहनने के लिए Yes, you are doing very, very, very well in your life. तो आप बहुत 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 अच्छा कर रहे हैं अपनी जिंदगी में. You have dreams? You are doing very well in your life. क्या आपको सपने आते हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं जिंदगी And में. finally, are you breathing? They're doing very, 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 very well in your life. और आखिरी चीज, क्या आप सांस ले रहे हैं? अगर हाँ ले रहे हैं तो आप बहुत 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 अच्छा कर रहे हैं Cast जिंदगी your में. burdens unto Jesus and go and have your rest. और अपने बोझ को प्रभु यीशु की तरफ डाल दें और जाइए और आराम से रहें. Now, I'm not going to end with the last song, but I'm going to take this one. I'm going to stay silent. We've talked, you all have heard. Just 5 minutes more. I know I took a little extra time, but we're all running late. So, and I shouldn't have taken extra time on this one. Let us reflect on these verses. Ajay will translate them in Hindi and I'll shut up. What's happening to this song? Look, we'll start again. I want you all to stay silent. I want you to stay silent. मैं चाहता हूं कि Ajay आप will only चुपचाप say it रहें. in Hindi. In English, it is written. Please read it. Please think about it. The verses, the questions, and let God speak to you. This is a time you spend with God. Yeah? Okay? You all are ready? Not started. Now what happened? Start again. Start again. किंतु वे जो धनवान बनना चाहते हैं प्रलोभनों में पड़कर जाल में फंस जाते हैं तथा उन्हें ऐसी अनेक मूर्खतापूर्ण और विनाशकारी इच्छाएं घेर लेती हैं जो लोगों को पतन और विनाश की खाई में ढकेल देती हैं. क्योंकि धन का प्रेम हर प्रकार की बुराई को जन्म देता है. कुछ लोग I'm reading that only 2 verses. 1 Timothy 6:9. हाँ, किसी ऊंट के लिए सुई के नकुए से निकल जाना तो संभव है, पर किसी धनिक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना असंभव है. वे लोग जिन्होंने ये सुना बोले, फिर भला उद्धार किसका होगा? यीशु ने कहा, वे बातें जो मनुष्य के लिए असंभव हैं परमेश्वर के लिए संभव है. फिर पतरस ने कहा, देख, हमारे पास जो कुछ था तेरे पीछे चलने के लिए हमने वे सब कुछ त्याग दिया. तब यीशु ने उनसे कहा, मैं सच्चाई के साथ तुमसे कहता हूं, ऐसा कोई नहीं है जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर बार या पत्नी या भाई बंधु या माता पिता का संतान का त्याग कर दिया और उसे इसी वर्तमान युग में कई गुणा अधिक ना मिले और आने वाले काल में वे अनंत जीवन को ना पा जाए. यीशु मरकर जी उठा. फिर यीशु उन 12 प्रेरितों को एक और ले जाकर उनसे बोला, सुनो, हे यरूशलेम जा रहे हैं, मनुष्य के पुत्र के विषय में नबियों द्वारा जो कुछ लिखा गया है वह पूरा होगा. परमेश्वर की आत्मा में दीन होने का मतलब क्या है? मैथ्यू 5:3 कहता है, धन्य है वो जो नम्र हैं, क्योंकि यह पृथ्वी उन्हीं की है. धन्य है वो हृदय से दीन है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं के लिए होगा. और जो सवाल है कि परमेश्वर के राज्य में और इस दुनिया में हम दीनता
कि किस तरीके से हम उसे इस्तेमाल करें। बल्कि परमेश्वर ने तो संसार में जो तथाकथित मूर्खतापूर्ण था उसे चुना ताकि बुद्धिमान लोग लज्जित हों। परमेश्वर ने संसार में दुर्बलों को चुना ताकि जो शक्तिशाली हैं वो लज्जित हों। परमेश्वर ने संसार में उन्हीं को चुना जो नीच थे, जिनसे घृणा की जाती थी और जो कुछ भी नहीं थे। परमेश्वर ने इन्हें चुना ताकि संसार जिसे कुछ समझता नहीं है उसे वो नष्ट कर सके, ताकि परमेश्वर के सामने कोई भी व्यक्ति अभिमान ना कर पाए। सवाल कहता है कि क्या हम सही में ऐसा विश्वास करते हैं कि हम इस शब्द के भाग हैं। यहोवा कंगालों को धूली से उठाता है, यहोवा उनके दुख को दूर करता है। यहोवा कंगालों को राजाओं के साथ बिठाता है, यहोवा कंगालों को प्रतिष्ठित सिंहासन पर बिठाता है। पूरा जगत अपनी नींव तक यहोवा का है, यहोवा जगत को उन खंभों पर टिकाए रहता है। अब इस वचन के द्वारा हम ये सोचें कि हमारी पुरानी जिंदगी कैसी थी। क्या वो एक ऐश राख के ढेर के समान थी। अब अपने दिल में ये सोचें कि कहां पर आप बैठे हैं। क्या आप राख के ढेर पर बैठे हैं या फिर आप प्रभु यीशु मसीह के साथ राजाओं जैसे बैठे हैं। यहोवा अपने परमेश्वर को याद रखो कि वह ही एक है जो तुम्हें यह कार्य करने की शक्ति देता है। यहोवा ऐसा क्यों करता है? क्योंकि इन दिनों वह तुम्हारे पूर्वजों के साथ की गई वाचा को पूरा कर रहा है। अब सोचें, गो बैक, ओके। इसीलिए उसके अनुग्रह के कारण जो उपहार उसने मुझे दिया उसे ध्यान में रखते हुए तुमसे हर एक से कहता हूं, अपने को यथेचित समझो, अर्थात जितना विश्वास उसने तुम्हें दिया है उसी के अनुसार अपने को समझना चाहिए। हमें सोचना है कि हम अपने जीवन में कैसा कर रहे हैं। हमें अपने जीवन के बारे में सोचना है। And this is where I'll close. और यहाँ पर खत्म करेंगे। I'm leaving these questions with you, these thoughts with you. ये सवाल और ये सोच आपके लिए छोड़ता A हूँ। week that you can reflect and say, God, I want to do all things through you who strengthens me. और And I कहें need to be परमेश्वर से part कि of the परमेश्वर vine मैं and the हर branches. चीज आपके साथ आपके द्वारा करना चाहता हूँ क्योंकि आप मुझे शक्ति देते हैं। And so think about it, reflect with God, and may He bless you all, and may you move on even further with Him. And और show आपका aside life's vanities. परमेश्वर के साथ God ये bless बातचीत you. करें और कहें परमेश्वर आप मुझे बताएं क्योंकि मैं आपके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। आपका हफ्ता आशीषित हो।